गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू वन मोर बुक लॉन्च इवेंट। मेरा नाम है रिधिमा ऑन बिहाफ ऑफ अध्ययन बुक्स और मैं आज आई हूं आपके सामने एक बुक प्रेजेंट करने। आशा करती हूं कि आपको हमारे बुक लॉन्च इवेंट्स, हमारे ऑथर्स को जानना अच्छा लगता होगा। कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे बुक लॉन्च इवेंट्स कैसे लगते हैं, कैसा लगता है बुक्स के बारे में जान के, ऑथर्स के बारे में जान के। आज जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे उस बुक का नाम है कॉर्पोरेट एक्सप्रेस जर्नी टुवर्ड्स कॉर्पोरेट ग्रेटनेस और इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर अमित चुग। ये बुक हमें बताती है कि आजकल का जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्पेसिफिकली, वो सिर्फ प्रॉफिट से या प्रमोशन से नहीं होता है। वो बेसिकली होता है पर्पस से, पीपल से एंड प्रोग्रेस से। Corporate Express is a guide for professionals seeking to elevate not only their careers but also their character and contribution within the workplace. Drawing from real world experiences and timeless principles, the author explores what truly drives corporate greatness. Before I invite the author here, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका भी देना चाहूंगी ताकि आप लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। Amit Chugh is a seasoned corporate leader with over 25 years of experience in building high performing teams, shaping organizational culture, and driving strategic growth across industries. A strong advocate of people centric leadership, he blends practical corporate insights with ancient wisdom from Ramayana and Mahabharata to help leaders navigate the complexity of modern workplace. सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं बुलाना चाहूंगी आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर अमित चुग। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? Thank you so much, रिधिमा. Thank you very very much. And I think so कि इतनी सब तारीफ के काबिल मैं नहीं हूँ, but definitely I think so. First of all, I would like to thank अध्ययन Books और आपकी entire team को कि you have provided me with an opportunity to come here and launch my book at this platform. So thank you so much to all your promoters and the people, those who have been involved with me in this journey of making this book event happen and helping me to launch this book at this platform. Thank you so much. So thank you for your kind words. We really get inspired with working people, working with people, authors like you. तो सर, अब आपकी बुक Amazon पे लाइव है, लोग खरीद रहे हैं, कैसा लगता है ये देखकर कि यू आर अ पब्लिश ऑथर नाउ? आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी बुक लाइव है Amazon पे, so anything that you want to share? Definitely, it looks like a dream come true because getting a book published, first of all itself is like a dream, and then फिर उसको Amazon पे आना और डेफिनेटली उसको मतलब और मेरे जो रीडर्स हैं वो रीड कर रहे हैं इस बुक को, तो बहुत ही अच्छा लगता है. And before I start answering any of your questions, I would first of all like to thank the people behind this particular book, my family, my wife, my kids, and my mother and my father, who has been a source of inspiration, and whoever I am is because of my parents. So I would like to first of all acknowledge them. And definitely, before starting any good thing, I would like to thank God for giving me this opportunity to write something about the corporate, because I it 26 साल हो गए हैं मेरे को. It's been 26 years, and I have started my journey from scratch. So it looks really very good that I today I am able to contribute something back to the place where I had been working for so long now. That's actually a very good thing and I think a very good feeling कि जो चीज हमने सीखी अगर हम आगे इम्पार्ट कर पाए तो that I think that makes us different from the other world. So आपने हमें बताया सर कि आपको अराउंड 25 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है. सो इस एक्सपीरियंस में कब ऐसा लगा आपको कि नाउ दिस बुक इज नीडेड, नाउ वी नीड टू राइट अ बुक? तो वो एक फीलिंग या वो एक इंस्टेंस क्या था उस टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम से कोई एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे कि मैं इंस्पायर हुआ कि आई शुड राइट दिस पर्टिकुलर बुक. आई थिंक सो दैट दिस थिंग इज समथिंग व्हिच वाज कमिंग अप फ्रॉम लास्ट 26 years.
So as I told you that I started, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो I belong from a business family, but my there was some business losses, and I somehow entered into corporate because my father told me that एक जो विद्या ही एक ऐसी चीज है जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता. द मनी कैन कम एंड गो. So, I entered, I did my schooling, then graduation, then post-graduation, MBA and law, everything. And then I entered into this field of corporate. So, एक जो है अपना from the scratch, when I, surpassed many departments, many things. So, I thought that, there is a need of telling the corporate story. So, I think so that it started building in me from last 4 5 years or so. So it was a gradual thing which was coming in my mind that I should write something on corporate leadership, about corporate culture. So ये एक gradually when I moved across various hierarchical posts, so I thought कि कैसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कल्चर होना चाहिए, कैसे लीडरशिप को परफॉर्म करना चाहिए. So all things were cropping at the back of my mind, and that inspired this particular book to come up. That's actually very interesting. Sir, book में रखा है corporate express. So what does it represent beyond speed and success? So if you see that अगर आपने किसी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जर्नी करी होगी या एक्सप्रेस जर्नी कभी भी करी होगी, तो आपने देखा होगा कि एक जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो बहुत कम स्टॉप्स पे रुकती है. So there are very few stops, and there are it moves on a very high speed. So if you see that today the corporate culture and corporates are also behaving in a similar manner. There are promotions, there are targets, there are so many things in a corporate which is happening at a very fast speed. And today when people are more operating on AI, so things are moving very very faster as it used to be few years back. So ये एक you can say it's a metaphor के एक illusion भी है कि हमें लगता है कि जब हम एक ट्रेन के अंदर बहुत एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम ही भाग रहे हैं और बाकी सारी चीजें स्टिल हैं. So but it is if you see the cover page of the book, so this is the two trains are walking, they are moving at a very high speed, and so this is an illusion because the persons they get moved into कि हमें प्रमोशंस के ऊपर देखते हैं वो और कैसे हायरार्की के अंदर ऊपर मूव करें, बट लेकिन वो अपनी कोर वैल्यूज भूल जाते हैं. सो कॉर्पोरेट एक्सप्रेस आई थिंक सो दैट इट द नेम सिग्निफाइड कि भाई एक स्पीड तो होनी चाहिए, लेकिन you should achieve success by being ethical. So this is how this particular book is all about. सर, जैसे आपने बुक दिखाई तो मैं अपने ऑडियंस को जरूर बोलना चाहूंगी, कॉर्पोरेट एक्सप्रेस, दिस बुक इज लाइव ऑन Amazon और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक भी लगाया है. सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, कॉर्पोरेट पर्सन, somebody who wants to be a leader, so I think you should go ahead and purchase the book, and when you purchase the book never forget to put a review, because I think एक ऑथर के लिए रीडर्स के रिव्यू से ज्यादा मोटिवेटिंग कुछ नहीं होता. So I would very recommend people to actually go ahead and purchase the book. सर, आपने अपने बुक में कहा है एक बहुत अच्छी लाइन, वो ये है कि कल्चर इज नॉट वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम, इट इज द गेम. सो आपको क्या लगता है कि जो लीडर्स होते हैं वो मोस्टली क्या मिस्टेक करते हैं कल्चर को बिल्ड करने में? देखिए क्या होता है कि एक लीडर का बहुत ही बड़ा रोल होता है कल्चर को बिल्ड करने के लिए. नाउ यू इमेजिन एक लीडर व्हेन ही स्पीकिंग पब्लिकली, वो एक बात बोल रहा है, और व्हेन ही स्टार्ट्स जब वो एक्शन में आ रहा है अपने
colleagues के साथ, then he is behaving totally differently. तो मतलब it's not a healthy culture, I'll say. एंड सो मैंने जैसे कि इस बुक के अंदर आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स. सो आई बिलीव इन वन चौपाई ऑफ रामायण के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए. सो आई पर्सनली फील दैट लीडर्स should honor their words, whatever they are saying in boardrooms or saying in public. They should exhibit the same kind of leadership within the organization when it comes to the action. So mostly क्या है कि leaders क्या होता है कि करनी कुछ और करनी कुछ. So that is the biggest mistake which the leadership makes, because क्या है कि अगर आप leader हैं तो आपको बहुत सारे लोग follow कर रहे हैं और आप उनके सामने कैसा एग्जाम्पल सेट करते हैं, आने वाली जनरेशन के साथ में कैसा एग्जाम्पल सेट करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द मेजर मिस्टेक आई इन माय व्यू के जो लीडर्स करते हैं कि भाई दे से समथिंग एंड दे डू समथिंग एंड देन लीडर्स आजकल क्या है कि ज्यादातर वो दे फील दैट दे आर द हीरोज. वही जो है अपना मतलब दे फील दैट दे आर द सब चीजें उन्हीं की वजह से चल रही है, बस जबकि ऐसा होता नहीं है. मतलब आपने अगर देखा होगा कि शो हमेशा चलता रहता है, किसी के आने या किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चलती रहती है. तो आई फील दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच द लीडर मेक्स मिस्टेक. प्राइमरीली आई पर्सनली फील के ऑनरिंग वंस वर्ड्स, एक अपनी शब्दों की कसौटी पे खड़े उतरना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर. तो जैसे कि आपने बताया, ट्रूली अग्री कि क्योंकि हम लीड कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी को ही लुक अप तो कर रही है हमारी टीम, तो अगर वी आर ओनली नॉट स्टैंडिंग ऑन आवर वर्ड्स, तो आई थिंक कि टीम के लिए भी अपनी कमिटमेंट्स पे, अपने वर्ड्स पे स्टैंड करना विल नॉट मेक एनी सेंस. राइट राइट राइट. तो सर, क्या एक कंपनी एक वीक लीडर सरवाइव कर सकती है, या लीडरशिप ही डिफाइन करती है कल्चर क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में? आई थिंक सो कि ये दोनों ही तरह से ये बात कहनी ठीक है. एक कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर वाली कंपनी एक वीक लीडर को कुछ हद तक तो बर्दाश्त कर लेगी, बट इट विल नॉट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग रन के अंदर जो है द लीडर विल हैव टू मेक अ स्पेस फॉर द अदर्स टू come in and occupy that position. और अगर एक लीडर वीक लीडर है तो वो ये भी हो सकता है कि जो एक अच्छा कल्चर है कंपनी का वो उसको खराब कर दे. बिकॉज आई हैव सीन लीडर्स दैट दे आर मोर बॉसी काइंड्स, दे आर एरोगेंट, they shout at the people, they make they feel that life is going around them only, and they sometimes एक ऐसी एरोगेंस आ जाती है लीडर्स के अंदर, दे स्टार्ट फीलिंग देमसेल्व्स एज गॉड. सो दैट इज समथिंग वो एक मेक और ब्रेक पॉइंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बिकॉज अगर आप कुछ भी एम्प्लॉयज से पूछे तो एम्प्लॉयज दे डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशंस, दे लीव देयर बॉसेस. Nobody wants to leave any organization. They wants to they always leave their bosses, and if their leaders are good and they are taking good care of their employees and their colleagues, I don't think so that anyone will leave that particular company. And I think somebody who leaves because of culture has no point of turning back. Somebody leaving for salary, promotion might come back to the company, but not for the culture, right? Yes. You're right. In fact, I'll say that people, they are not only motivated by salary and incentives and money. I think so that people, if they are felt that they are valued, they are trusted, and they are given control of their work, I think so that gives them more motivation. Then definitely money is one thing, but if a
person is not respected at any workplace, or if he is not valued and if he is not trusted, I think so that becomes a biggest demotivation, demotivating factor for a person to be into any organization. ट्रू, ट्रू। सर आपने बताया कि आपने इस बुक से एंशिएंट बुक्स को कनेक्ट किया है जैसे भगवद गीता, रामायणा। तो जब आप इसको कनेक्ट कर रहे थे तो कोई रेजिस्टेंस आई थी एंशिएंट विज़डम और मॉडर्न पॉलिटिक्स के बीच? देखिए कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आई थी, मेरे माइंड में तो नहीं आई थी, बट डेफिनेटली मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि we as an Indians, we have such a strong culture, but whenever we read the management books, we start reading the foreign authors like Philip Kotler, Marcus, and भगवान कृष्ण जैसे जो शख्सियत हैं उनकी, so I mean we treat them that के ये तो बस रिलीजियस एक स्क्रिप्चर है या एक स्पिरिचुअल चीज है. So but if we take the lessons from our scriptures, they are better than the management books which we have been reading so far. So I think so that modern people, they may have some resistance, but I think so that I personally feel that things are very normal, and people and leaders, they make them very complex. So it is the time that we should make the things simpler and easy for the people to go ahead. यस, आई थिंक जितना प्रोसेस ईज़ी होगा उसको फॉलो करना किसी के लिए भी, कोई एक नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयी के लिए भी बहुत आसान हो जाता है, राइट? राइट. सर आपकी बुक में एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट भी है कर्मा का, जिसमें आप बता रहे हैं कि ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। तो क्या रियलिस्टिकली ये काम करता है टारगेट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस में? तो ये ना एक बहुत ही मतलब अगर एक लीडर को लीडर बनना है, तो मतलब अगर किसी को लीडर बनना है, तो ये एक बहुत ही टफ चीज होती है, बिकॉज एवरीवन हु बिकॉज आई हैव पास थ्रू वेरियस हायरार्कीज. सो इनिशियली क्या होता है, वंस अ पर्सन डज समथिंग गुड, तो उसके माइंड के अंदर हमेशा ये रहता है कि आई शुड बी प्रेज्ड, आई शुड बी गिवन ड्यू अटेंशन. अगर बाई चांस वो चीज नहीं मिलती है, तो देन ही और शी स्टार्ट्स फीलिंग डिमोटिवेटेड, एंड वो फॉल बैक हो जाता है. तो जो कर्मा का जो मेथोडोलॉजी है, वो ये डेफिनेटली है कि सी यू हैव टू keep on going, keep on doing your karma, and don't get worried from the outcomes, that whether you are praised or not, because sooner or later you yourself will become your best critics, and you yourself will become your best motivator. तो जब आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं कि you yourself become your best motivator and your best critic, then you start enjoying whatever you are working with. So I think so leadership getting matured in the process of corporate journey, karma theory really holds a lot of importance. ट्रू, ट्रू। आई थिंक कर्मा से हम ये भी एक चीज कर रहे हैं कि हम रिजल्ट से ज्यादा अटैच नहीं हो रहे, तो शायद डिसअपॉइंटमेंट भी कम होगी अगर 1% वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट रिजल्ट। yes. So because अगर आप देखें कि why I have taken the concept of Bhagavad Gita, because there Lord Krishna has told Arjuna कि you have to fight. Arjun was about to collapse. I cannot fight. So he made him understand the thing, and that is how people today in corporate world, they give up because of there is too much of pressure sometime, और कई बार काफी सारी चीजें होती हैं, people they give up on the pressure. So
So that is where I personally recommend people should read Bhagavad Gita. People should read our scriptures. ट्रू। सो सर जैसे कि हम बात करें लॉर्ड कृष्ण की और लॉर्ड राम की, तो आपके हिसाब से मोस्ट रिलेटेबल लीडर कौन था, लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड राम? So if you ask me, then I will say that considering आज हम कलयुग के अंदर हैं, तो कलयुग के अंदर तो जो लॉर्ड कृष्णा है, उनकी लीडरशिप स्टाइल ही सबसे बेस्ट रहेगी। और क्योंकि क्या है कि मतलब सामने हमारे कंपिटिटर्स हैं, काफी अनसर्टेनिटी है और इतना डायनेमिज्म है आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर दैट it Krishna theory that he did not even lifted the arms till he was able to succeed and he was able to guide Arjuna that how to be victorious. So the Krishna leadership is the most relatable in today's corporate world. And if you see that morally, Bhagwan Ram, जो Lord Rama है, if you see that how I perceive myself to be, I would like to follow in the footsteps which Bhagwan Rama followed. That's why he was considered Maryada Purushottam, and so. But it's very difficult कि जैसे कि अपना सब कुछ त्याग देना सब राइटियसनेस के लिए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आज के परिवेश के अंदर। तो फिर तो हम जो है मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि भगवान ही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई विल कंसिडर लॉर्ड कृष्णा एज माय hero and more as a from a leadership style. Lord Krishna style is more relatable. एंड आई थिंक यही बेटर है बिकॉज लॉर्ड रामा की सिचुएशंस भी हमारे यहाँ पे एप्ट है बिकॉज दैट टाइम द सिचुएशंस वर वेरी right absolutely because जो है अपना वो सिचुएशन, वो एक कौन सा युग था, और उसके बाद अगर आप आज का समय देखें तो things have really very much changed. I think so that things have changed from the times when Lord Krishna has the Mahabharata happened. So I think so that but still I feel that today सर आजकल के टाइम पे क्वार्टरली प्रेशर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस होती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है हर एक फील्ड में। तो इस तरीके में जो लीडर्स होते हैं वो कैसे हमारे एथिक्स को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं? See, I think so that quarterly pressure से कुछ ethics make or break नहीं होते। Majorly it's all there in the mindset. It's all about how we are अगर पैनिक है, अगर एक लीडर है उसको if he is not able to handle the pressure properly and he is not able to he is not able to take up the pressure and he starts yelling abuses to his colleagues और उसको पता ही नहीं है कि मतलब प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, तो मेजरली वो पैनिक में आ जाता है उस टाइम पे। तो पैनिक बटन जब होता है तो वहां पे बहुत थिन लाइन होती है कि आपको जो है अपनी वैल्यू सिस्टम को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अब जैसे सेल्स पर्सन के पास टारगेट्स होते हैं और जो अपना इस मंथ के एंड के अंदर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो नेक्स्ट मंथ के अंदर वो करना है, तो कुछ सेल्स कर देते हैं, मतलब एट द end of the month they do the sales and then they follow the some bad practices जो कि लीडर्स ही कई बार फॉलो करते हैं। अब अगर एज अ लीडर आप अपने एथिक्स को छोड़ रहे हैं तो हाउ कैन यू एंश्योर कि आपकी जो डाउन द लाइन टीम है वो उस एथिक्स को फॉलो करेगी या वो चोरी नहीं करेगी। So it is very very important that as a leader you have to keep patience
or don't give up to the pressure, and don't give up to the ethics and the value system which you are operating in the company, in the organization. ट्रू। चाहे जितनी भी पैनिक सिचुएशन हो, जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, वो एक बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी नीडेड। Right. और आपने एक बहुत अच्छी चीज पे भी एम्फोसिस किया हुआ है अपनी बुक पे, जिसे कहते हैं हम सर्वेंट लीडरशिप। तो Yes. एक लीडर कैसे बैलेंस कर सकता है एम्पैथी को एंड अकाउंटेबिलिटी? So I think so that the best example of servant leadership. I was really very very moved by our Prime Minister Narendra Modi ji. He when he became the Prime Minister, I was moved by his words कि भाई मैं जो है अपना जनता का राजा नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ. So I think so with only these simple words he was able to connect with millions, with Indians. So I think so that is that is what is required in today's leadership also. One has to be empathetic and but सिर्फ अगर आप empathetic रह रहे हैं अपने colleagues के साथ और लेकिन उनको accountability नहीं दे रहे हैं, तो it's also like punishing them. You have to be मतलब ऐसा आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि मतलब सब चीजें ऑटो पायलट मोड पे एज पर प्रोसेस चले, एंड पीपल शुड फील कि यार अगर मैंने इसको डेविएट किया तो देयर विल बी एन इशू. he or she should be able to take the accountability on its own कि ये this is the culture of the company, this is my core value, I have to do this work in this much span of time. एंड आई थिंक तो कि लोगों को गाली देके या डांट के या कुछ इस तरीके से करना इज नॉट द टुडे स्टाइल ऑफ लीडरशिप. टुडे स्टाइल इज टू बी मोर रिलेटेबल. You should become friends with your colleagues, and then I think so you'll be able to get more out of your organization. True. That's actually true and very relevant. Because being in corporate world, I think it's very relevant and people need to learn this. Yes. So guys, आज हम बात कर रहे हैं अमित चुप्पी से. जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट एक्सप्रेस है इनकी बुक का नाम. Amazon पे है ये बुक अवेलेबल. तो अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आ रही है and you are liking the ideas, तो आप इस पूरी बुक को जाके पढ़ सकते हैं. Kindle वर्जन, पेपरबैक अवेलेबल है. तो go ahead and read. Sir, what is the biggest myth in corporate world which is linked with employee motivation? Can you please come up once again? Sure. Sir, एक क्या myth है हमारे corporate world में जो employee motivation से जुड़ा हुआ है? So biggest myth is only this कि employee gets motivated only by salary or incentive. मैं कहूँगा जैसा कि मैंने बताया कि एम्प्लॉय मोटिवेशन, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको ट्रस्ट नहीं मिल रहा है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये मिथ है कि सिर्फ आप पैसे दे दीजिए और तो एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड. अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उसको ही विल नॉट फील वैल्यूड, उसको ये एहसास नहीं होगा कि जो काम उसने किया उसमें उसका कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन आया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ही विल सूनर और लेटर ही विल स्टार्ट फीलिंग कि दिस इज समथिंग व्हिच इज अ डेली थिंग व्हिच इज हैपनिंग, एंड ही विल स्टार्ट डिसलाइकिंग हिज और हर जॉब. So I think so that we have to keep the employees connected and feel valued, feel respectful, and उनको ये एहसास दिलाना कि we are acknowledging them for the best work they have done. So that motivates them a lot. And I think we can ask for their suggestions too. I think people working on ground come up with very good suggestions. उनके suggestions भी company को एक better position पे पहुंचा सकते हैं. Yes. So I think so that in our organization also we have kept suggestion boxes at various places in the organization, and we always tell them that there is no need for you to write your name also, and you can
आप बिना नाम लिखे अपने सजेशंस दीजिए एंड वी वेलकम द सजेशंस एंड वी टेक द सजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू। सर कई बार क्या होता है कि हमारी टीम में बहुत सारे हाई परफॉर्मर्स होते हैं और वो कल्चर को डैमेज कर रहे होते हैं, तो लीडर्स इस केस में क्या कर सकते हैं? आई थिंक सो कि लीडर को उस हाई परफॉर्मर के साथ स्ट्रेट 1:1 डिस्कशन कर लेना चाहिए। देखिए कि डेफिनेटली अगर वो हाई परफॉर्मर है, बट आई थिंक सो कि हमें एट द एंड ऑफ द डे ये समझना है कि हमने पैसा कमाना किस तरीके से है। बेईमानी करके कमाना है या हम अपने सारे एथिक्स को, वैल्यू सिस्टम को ताक पे रख के कमाना चाहते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीडरशिप टू अंडरस्टैंड दैट एंड एक स्ट्रेट फेस टू फेस डिस्कशन कर लेना चाहिए हाई परफॉर्मिंग पर्सन के साथ, दैट ओके दैट यू आर हाई परफॉर्मर, बट आई थिंक सो दैट यू नीड टू अमेंड all these things because this is going to really bring a bad repute for the uh, organization and ये हेल्दी साइन नहीं है बाकी के सब कलीग्स के लिए और एम्प्लॉयज के लिए। तो आई थिंक सो वी शुड हैव अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन इमीडिएटली। ट्रू, आई थिंक डायरेक्ट कन्वर्सेशन से काफी आइडिया हो जाएगा कि वेयर इज द माइंड फ्रेम। कई बार आई थिंक पीपल डोंट इवन रियलाइज, कई बार इफ यू शेयर अ फीडबैक टू देम तो दे इंप्रूव देमसेल्व्स। राइट राइट राइट। सर इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वो एक चैप्टर आप रेकमेंड करेंगे जिस प्रिंसिपल को अगर कोई भी रीडर स्टार्ट करना चाहे तो वो मतलब सबसे पहले वही चैप्टर पढ़ ले? I think so that I will recommend two chapters. One is about the culture, and the second one is about karma. So these are the two very important chapters. I think so because it is all because as we have been working for so many years, so definitely एक attachment हो जाती है अपने काम से ना, और कि मैंने ये काम किया और मुझे इसका फल ऐसा नहीं मिला, ऐसा मिला, सो देन वी स्टार्ट फीलिंग डिस्टर्ब। So I think these two chapters and culture, how important is the culture, how important is the value system for any organization and for the leadership to carry on, is these two are the very good chapters, I think so, which can be helpful for the leaders as well as the people, those who are aspiring to be the leaders. सो गाइज आई थिंक अमित जी ने एक बहुत इजी बात भी बता दी कि अगर आप बुक खरीदते हैं तो अगर आप पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं भी रख पा रहे हैं तो दो चैप्टर्स बताए उन्होंने, एक कल्चर से रिलेटेड चैप्टर है और कर्मा से रिलेटेड चैप्टर है। अगर आप ये दो फिलोसफीज अपनी लीडरशिप में, अपनी लाइफ में ला पाए तो आई थिंक आपका करियर एक को एक पर्पस मिल जाएगा, आपकी लीडरशिप को एक डायरेक्शन मिल जाएगा। सो सर एक क्वेश्चन अगर रोज शाम को लीडर को पूछना हो अपने आप से, तो वो क्या एक क्वेश्चन है that he or she should ask daily to himself or herself? देखिए मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने रिधिमा जी कि एज अ लीडर क्या पूछना चाहिए आपको। देखिए ये पूछना कि ये टारगेट पूरा हो गया, ये मैंने मतलब और क्या वैल्यू एडिशन किया, ये तो एक चीज है, बट डेफिनेटली you should ask that आपने एज अ लीडर आपके एम्प्लॉइज कितने फ्री हैं, मतलब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से फियर फोबिया कितना हटा दिया। हाउ मेनी, अगर आप देखें तो पीपल दे आई मीन फ्रॉम द पीएन टिल टू द ऑल द सीनियर लीडर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन कम ओवर एंड डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद मी. So they don't have to think twice, they come and discuss their personal, problems also. So for a leader, it's very important to see कि उसके मतलब जो employees हैं या उसके जो colleagues हैं, उनके अंदर से क्योंकि अगर fear होगा तो innovation नहीं होगी, कोई नई invention नहीं होगी, और अगर fear नहीं होगा तो वो इन्वेंशन भी होगी और इनोवेशन भी होगी। सो आई थिंक सो कि एज अ लीडर वन हैज टू सी के उसने आज और कितना जल्दी ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो कर सकता है आपकी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए कि ये एस्टैब्लिश करना कि वेदर देर आर ब्लैक होल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और माई ऑर्गेनाइजेशन इज running running smoothly. smooth. And so that is something which a leader should ask daily from himself or herself कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया इस एस्पेक्ट के ऊपर. ट्रू. आई थिंक अगर फियर नहीं होगा तो लोग फ्रीली उस काम को अच्छे से करेंगे और आई थिंक अपना समझ के भी करेंगे. फियर ब्रिंग्स की एक नेगेटिव एनर्जी एज वेल. राइट. उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. उनको मतलब उनको दे शुड फील दैट ये जो चीज मैंने दे शुड फील अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल. अब क्या है कि लीडरशिप जो है वो आती तो है, बस वो ये सोचते हैं कि लीडर डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनी अ टाइम. जबकि जो अपना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लीडर शुड टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग. अगर कुछ गलत हुआ है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए, और कुछ अच्छा है तो वो उसको कहना चाहिए मेरी टीम की वजह से हुआ है. सो दैट इज अ ट्रू लीडरशिप. ट्रू. सो सर, इस बुक को लिखने के बाद और इस बुक का मैसेज आप पास ऑन कर रहे हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 10 साल में ये बुक कैसे हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन को? कैसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी अगर वो इस बुक को फॉलो करती है? आई थिंक सो कि अगर ये जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या रीडर्स जो रीड करेंगे, मेरी पीपल इन माय इंडस्ट्री विल आल्सो रीड माय बुक, बिकॉज my industry is also a big industry, so I'll definitely ensure that now they will also come and read this particular book. So I feel that अगर एक फास्ट अगर हमारे को एक ग्रोथ चाहिए, तो कई चीजें जो अपना समझने में समय लगता है. सो आई थिंक सो दैट इट टुक मी 26 years टू राइट दिस पर्टिकुलर बुक. तो लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा समझने में चीजें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और दे विल बी एबल टू बिल्ड a good cultural organization with good ethics very soon and very fast. I think it's actually it's going to change the way people think leaders should be, right? एक Yes. mindset shift हो जाएगा. Right. तो सर, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई थिंक बहुत सारे लोग ये इंटरव्यू देखेंगे और आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो क्या एक लास्ट मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं कुछ इस बुक के लिए, उनकी लीडरशिप जर्नीज के लिए, करियर्स के लिए? आई थिंक सो कि मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि success is important, but success should not be there at the cost of your own dignity. And it is about corporate greatness. So corporate greatness has to be achieved, but you have to be ethical and you have to stick to your moral values. And मैं ये कहूंगा कि you have to be honest. फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, एंड देन वो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, तो मैं जब आपको देखियो तो मुझसे बुरा ना कोई. सो आई थिंक सो दैट you should before pinpointing the mistakes of others, one should see के how incomplete we ourselves are, and definitely we all can achieve great success keeping our core values and dignity in place. So my suggestion to everyone is that everything will follow. You have to just keep yourself truthful and be honest to yourself. And I think so this has been the core mantra of whatever I have achieved so far. So I would like to exhibit the same thing to my readers and viewers. I think honesty solves almost all kind of problems in life. Yes. I think so सभी लोगों की प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेट्स के अंदर एक ये बुक शायद पढ़ के सभी को ये रिलेटेबल लगेगी. कोई ऐसा नहीं है कि you will not find it a relatable thing. It is relatable to everyone, and I
I think so. We all pass through the same phases. Sooner or later आती ही हैं ये सब issues आते हैं, problems आती हैं, and it becomes imperative कि उस problem के ऊपर हमने action हर किसी इंसान ने कैसा action लिया, कुछ किसी ने जो है अपना डटा रहा, किसी ने सिक्स मार दिया, और या किसी ने कोई आउट हो गया, या किसी ने जो है अपना गेम छोड़ के चला गया. So it is all everyone has got its own. वो सिचुएशंस आती हैं, लेकिन सबके एक्शंस अलग-अलग हो जाते हैं. ट्रू, ट्रू. सो अमित जी, थैंक यू सो मच. आपने इतना टाइम निकाला, आपने इस बुक के बारे में हमसे बात की, एंड वी रियली विश कि दिस बुक रीचेस द ऑडियंस इट्स मेंट फॉर. और अगर इससे कोई भी लीडर्स, कोई भी अपनी जर्नी बेटर कर पाता है एज अ प्रोफेशनल, आई थिंक दैट विल serve the purpose of this book. So I really thank you, and it was pleasure hosting this event. Thank you. Thank you so much, Ridhima. In fact, I never thought that I'll be having such a good host being hosting my book launch, and I'm really very very thankful. And the questions you have asked are very very relevant, and I look forward to being associated with Adyan Books for future also. And thank you once again for all your wishes and support. Thanks a lot. Thank you so much, Amit ji. Thank you. Thank you. Thanks a lot. सो आज हमने बात की कॉर्पोरेट एक्सप्रेस के बारे में. ये बुक जो है वो एक मिरर है लीडर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए. एक ब्लूप्रिंट है कि आज के जमाने में या आज की द वे वी आर लिविंग लाइफ, द पीपल दैट वी आर हैंडलिंग, हमारी लीडरशिप, हमारी कॉर्पोरेट जर्नी कैसी होनी चाहिए. सो अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का बाइंग लिंक है. प्लीज जाके इसे खरीदेगा, अपने रिव्यूज दीजिएगा ऑथर को, और कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी कुछ चीजें इंप्लीमेंट जरूर करें. सो आशा करती हूँ कि आपको ये इवेंट पसंद आया होगा. हम इसी तरह से वापस आते रहेंगे न्यू बुक्स लेकर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.